Good evening, everyone. A big warm welcome to all of you all on today's demo. My name is Heer Chhabria और आज हम बात करेंगे about Vedic numerology. So, numerology is a subject which I'm sure many of you all practice. Maybe Osho numerology, maybe Chaldean numerology, Pythagorean numerology, but Vedic numerology जो है ये बहुत ज़्यादा famous subject nahi hai. There are not many people who know about Vedic numerology. Can I quickly have a hands up? How many of you all know Vedic numerology? What is it all about? Acha, can someone tell me what does the term Vedic numerology suggest? Numerology is study of numbers. What is Vedic about it? Ancient. Ancient, yes. And more about planets and their houses. No, because astrology में houses होते हैं 12. यहाँ पर हमारे पास grid होते हैं. Grid में maximum 9 होते हैं because there are 9 planets. And even Loshu by itself consists of 9 planets. So not really that point. Yes, Meetu, you were about to say something. Related with India? Because Vedas were also related with India. You can say ancient, Indian and... Ma'am, based on our Vedas, like scriptures? Kind of, yes, we can say that. Because अगर हम most famous astrology की बात करें, जो है हमारा Loshu derives from Chinese astrology. It is very much Feng Shui based. It is very much China system based. It is not an Indian numerology. जैसे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, बिकॉज हम जो है पर्टिकुलरली रीना प्लीज म्यूट योरसेल्फ. One second. Someone asked me for the link. Just 1 second. So Vedic numerology is the science, is a system where you study numerology in a Vedic way. हम सब जानते हैं Vedic astrology में, guys please put on your cameras. ये थोड़ा सा ना black top पे देख के it gets little demotivating for me. फिर मैं ठे होके नहीं पढ़ा पाऊंगी. Actually ठे होके पढ़ाऊंगी, छाए होके नहीं पढ़ा पाऊंगी. There's a difference, you know. So everyone try and put on your camera. So मुझे थोड़ा जोश आएगा. In short आप ही कुछ अच्छे से सीख लोगे. Right? Okay. So Vedic numerology है जो वो हमारे Indian system पे depend करती है. It's a lot to do with the mythological stories, and at the same time, along with this is one thing. Astrology में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तुम्हारा राहु का दशा चल रहा है, तुम्हारा केतु का दशा चल रहा है. This दशा system जो हम generally astrology से देखते हैं, जो astrology में देखते हैं वो कौन सी होती है? विंशोत्तरी दशा. यहाँ पर हम बकायदे महादशा कैलकुलेट करेंगे, अंतरदशा कैलकुलेट करेंगे, and there will be these numbers that take a play in our grid, calling it Vedic numerology. अब डिफरेंस क्या है? Those of you, अच्छा कोई ऐसा है जिसको न्यूमरोलॉजी का ABC नहीं आता? Like आपने न्यूमरोलॉजी ना कभी देखी है, ना सीखी है, ना करी है और ना पता है? Anybody who's completely कोरा कागज here? अनन्या के अलावा anyone else? अन्वेषा, इनालिसा, सरिता, कशिश, रचना. My God, there are many. क्या बात है. चलो शुरू से शुरुआत करते हैं. The study of numbers is called numerology. Numero, numbers. Logic क्यों आया? क्योंकि वो लॉजिक है. मैं आपसे कहूंगी 2 + 2 = 3. Anupama, I'm right. I'm the teacher here. Zoom class मेरी है. I have to be right. Anvesha, it is my class. I am the numerologist. I am the teacher. I don't take guarantee of my school teachers, but numerology 2 + 2 3 होता है. My class, my rules. They say ma class, ma rules types. तुम्हें पता है, घुसा हुआ है दिमाग के अंदर लॉजिक में
2 + 2 4 होगा. Whoever says it to you, तुम्हारे को कोई भी आके बोल देगा, तुमको पता है 2 + 2 4 होता है. It cannot be 3, it cannot be 3.25, it cannot be 9.25, it cannot be 4.25. 4 मतलब 4. ये जो लॉजिक है उसके पीछे का, इसीलिए नंबर्स की स्टडी को लॉजिक कहा जाता है. आप अगर न्यूमरोलॉजी को देखते हो, न्यूमरोलॉजी में जो स्टडी के लिए ग्रिड बनता है, यानी कि डब्बा बनता है, उसे ग्रिड कहते हैं, जहां पे 9 नंबर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी रूट्स सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ 9 नंबर्स, बिकॉज जैसे ही 0 की तो वैल्यू नहीं है, शाल्डियन सिस्टम में 0 की बहुत बड़ी वैल्यू है. मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ. 1 को 10 से कौन सेपरेट करता है? 10 को 100 कौन बनाता है? चेकबुक पे 1 लिखो, लोग आपको भिखारी समझेंगे. लाख रुपए समझो, सलाम ठोकेंगे. करोड़ रुपए लिखो तो तुम्हारे पैरों पे गिर जाएंगे. 10 करोड़ लिखो तो बाबा बाबा तुम्हारे आगे पीछे डोलने लगेंगे. तो वो जो 1 से लेकर के 1 करोड़ तक के 7 zeros हैं, वो देते हैं आपको वैल्यू. लेकिन अगर वो 1 हटा दोगे, 7 की जगह 70 0 डाल दोगे, तो भी आपको कछू कोई पूछने वाला नहीं. सो 0 क्या बना? 0 वैल्यू एडिशन बना. बाय इटसेल्फ इट इज नथिंग, शून्य. लेकिन जिसके साथ लग जाए उसकी वैल्यू को डबल, ट्रिपल, चौपल, व्हाटएवर बना देता है. दैट इज द पावर ऑफ 0. ओके, सो नो नंबर इज नथिंग एट ऑल. When I was young, my mom was very interested in astrology. जैसे काफी लोग, sorry, numerology. My mama has always been a numerology person. सीखी विखी कभी नहीं है, but सुना सुनाया बहुत है. So अगर like I am a 17 born, I am a personality number 8, because 17 comes down to a single number 8. My mama's friend is a number 8 by itself. She is 8th May, I guess, 8th May or 8th March birth है उनका. Okay. And she's like, you are 8, she's 8. I'm like, no. That time I was like, हाँ 8 8 होता है. तो 17 भी 8 है, 26 भी 8 है, 8 भी 8 है. There's no difference. मैं तो इसने हाँ मैम ये थोड़ा लॉजिकल साउंड कर रहा है. No. 8 is a single 8. 8 is 8 when reduced by 17, which is 1 + 7, making it a 8. तो पहले 1 की वैल्यू है, पहले तो 17 की वैल्यू है. 17 की एक वैल्यू है, माने 17 number has a value, 1 number has a value, 7 number, and then 8 has a value. Okay, ये system Chaldean system, where all, even the double digits have their own meaning and value system. ठीक है. लोशु is Chinese numerology. उनको एक टॉर्टोइज मिला, जिन्होंने उसको वो उनको बाढ़ से बचाया. वो टॉर्टोइज के पीछे उसके बैक के ऊपर एक वो स्क्वायर बना हुआ था. मैजिकल स्क्वायर बोलते हैं उस लोशु ग्रिड को. लोशु ग्रिड क्यों है? क्योंकि 9 नंबर्स 9 स्क्वायर्स में बना हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए उसे लोशु ग्रिड कहते हैं, जो किसी भी हिसाब से कहीं से भी कम नहीं है. बट द वन मेथड what Loshu has to calculate and predict events is only personal year, personal month, personal day. वैदिक सिस्टम ये नहीं मानता. दूसरी चीज जो वैदिक सिस्टम नहीं मानता, which is very different, Vedic numerology I mean, is very different from other numerology systems, is the century number. Megha is born in 19 something, Shakuntala is born 1900 something, Mitu is born 1900 something. तो क्या सभी में 191919 वाली क्वालिटीज आएंगी? 1 shows independence, 9 shows wiseness, 9 shows दृढ़ता. क्या हर एक में वो कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस एंड दृढ़ता आएगी? मैनली क्वालिटीज आएंगी? नो. दिस इज वेयर वैदिक इज डिफरेंट. वैदिक सेज हमको सेंचुरी नंबर लेना ही नहीं. सेंचुरी नंबर क्या होता है?
आई एम 1990 बॉर्न, नहीं हूँ, एक बात बोल रही हूँ 1990, तो वो 19 उड़ा दो, 90 को कंसिडर करो, ईयर नंबर, सेंचुरी नंबर नहीं लेना व्हेन वी मेक द वैदिक ग्रिड। अनदर थिंग, लोशो क्या करता है, आपका पर्सनालिटी नंबर, आपका कुआं नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर, जिसको कंडक्टर ड्राइवर भी कहते हैं, चालक संचालक कहते हैं, ऑल ऑफ दैट आपने अपनी बर्थ डेट को ग्रिड पे डाला, यहां से ये 3 नंबर डाले एंड यू स्टार्ट। वैदिक कहता है आई नो यू आर अ पर्सनालिटी नंबर 8, आई नो यू आर अ डेस्टिनी नंबर 4, ओके यू आर अ कुआं नंबर, लेकिन उनको आपको ग्रिड में डालना क्यों है? जब मैंने पहली बार सीखा, मेरे को था जो बच्चा 2 फरवरी 2002 को पैदा हो, 2 2 2 आया ही कुछ नहीं, चलो कुआं नंबर से उसका कुछ और आ जाता, टोटल में 8 आ जाता, तो 8 नंबर तो ग्रिड में आ ही जाता। मुझे बोले कि जब हम ऑलरेडी और 4 नंबर डालेंगे तो यहाँ पे गर्दी होगी, तो वो कहां से आएंगे? बोलते दैट इज द डिफरेंस ऑफ वैदिक एंड अदर सिस्टम्स। देयर इज वन कैलकुलेशन कॉल्ड महादशा, another number calculation is antardasha, third is gochar, fourth is personal year, महादशा, अंतरदशा, गोचर, पर्सनल ईयर। इसीलिए इसको न्यूमरोलॉजी है तो पर्सनल ईयर तो आएगा ही आएगा, यू कैन नॉट डिनाई। अब जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अब वो सब अगर यहाँ लेकर आगे तो ग्रेड तो भर जाएगा, वी कांट डू दैट, सो देयरफॉर ओनली महादशा, अंतरदशा एंड गोचर ट्रांजिट तो है ही है, ये वैदिक है। इट इज डिराइविंग मेनी ऑफ इट्स रूट्स, नॉट ऑल, मेनी ऑफ इट्स रूट्स फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए ये काफी पक्का तरीका है आपके इवेंट्स निकालने का। सो यू हैव अ ग्रिड, आपकी बर्थ की ग्रिड बन गई, और उसमें आए एवरी ईयर, कभी कभी एवरी मंथ, कभी कभी एवरी 6 मंथ, वो कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट, आपके नंबर्स बदली होते जाएंगे। कितने नंबर्स बदली होंगे? 4। अब लगा लो जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, आपको पता है 2 2 2 अगर एक ग्रिड में आ गया, उसको ऊपर बिठा दो, नीचे बिठा दो, कहीं पे भी बिठा दो, 2 स्टैंड्स फॉर मून। ये बच्चों बहुत ज्यादा मूडी होगा, मम्मा के ऊपर दिक्कत दिखाता है, ऑब्वियसली ये फेमिनाइन नंबर है तो ये थोड़ा फेमिनाइन बिहेवियर वाला होगा। अब आया तड़का, लगा लो महादशा 1 है, 1 नंबर, अंतरदशा 4 है, इट कैन बी एनी नंबर बाय द वे, गोचर 9 है और उसका पर्सनल ईयर 3 है। आ गई खिचड़ी, ग्रिड में 4 नंबर्स और आ गए, अब रीडिंग चेंज हो जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेहा म्यूट योरसेल्फ, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये एडजस्ट होगा होगा होगा, फिर अगले साल 4 अलग नंबर, 4 वही नंबर, हो सकता है चारों 2 2 2 2 आ जाए। भाई इसके तो 7 2s होगा एक ही साथ में, 7 2s, ज्योति 7 बार 2 बैंड बजेगी, ये कहां से बताओगे? देयरफॉर ये जो सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का बहुत सटीक है, बहुत ज्यादा एप्ट है, एंड प्रेडिक्शंस यूं निकलती है। इसीलिए when you see the changes that happens in someone's life from birth, पैदा होते साल बच्चा बहुत सही चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अगले साल बीमार पड़ गया, पैदा हुआ था सब कुछ ठीक था, बाप की तरक्की होने लगी थी, बाप डूब गया, पैदा होते साल बाप को नौकरी से निकालने वाले थे, उसको बिजनेस हाथ लग गया, भाई साहब करोड़पति बन गया। अब इसकी शादी हुई है, शादी में बहुत अच्छा है, हनीमून की फोटोज, मैं तू तेरा तू मेरी, हम दोनों सोना सोना टाइप्स, एंड देन अगले दिन मैं दुश्मन तू मेरी दुश्मन मेरा, मैं सफेरा, ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड, या मंथली ऑल्सो, मैं नागिन तू नागिन सफेरा बन के चलना शुरू कर दे। ये कहां से हो रहा है? नंबर्स, बिकॉज ये 4 नंबर आप चाहो ना चाहो
कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में आते जाते रहेंगे ना। द प्रॉब्लम इज इनके आने जाने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनके कॉम्बिनेशन से है। अमूमन सबके एक ही मम्मी होती है, वो एक हैंडल नहीं हो रही होती है, 4 हो जाएंगी 5 हो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी कमेटी लग गई मम्मी की, सब तुमको एक झाड़ू एक चप्पल एक छित्तर मार रही है, तुम्हारा क्या हाल होगा? अब मैं हूं अकेले यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज करेगा मैं उसको म्यूट कर दूंगी। मुझ जैसी 4 आ गई तो मेरा क्या होगा? मेरा छोड़ो तुम्हारा क्या होएगा? सो दैट ऑल्सो कैन लीड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स। समझ रहे हो? तो ये जो चीजें हैं विच इज कॉल्ड द प्रिडिक्शन of timing of an event, whatever the event may be, comes precise from Vedic numerology. Are we clear? Example लेंगे. How do we make the grid? Everyone has pen and paper with you all? Yes. एक quick water break ले रही हूँ, एक आधे सेकंड का 2 सेकंड का. Take a pen and paper, write your name, write your birth date. मैं एक random birth date बोलूंगी, वहां पे वो लिखो, आज की डेट लिखना. एंड if you are in my class, just write some om या एक ओमकार or something on the top. It always will give you blessings for the class. आपका खुद का ग्रिड आप प्रैक्टिस के लिए बनाओगे, जो मैं सिखा रही हूँ पहले वो बनेगा. सबको करना कुछ नहीं है, आपको यूं स्पेयर मी फॉर माय हैंडराइटिंग. XN0 हम सब बचपन में खेलते थे. एनीबॉडी जिसको XN0 नहीं याद है मेरे साथ आके खेलो. आई वांट समवन टू प्ले. दिस इज XN0. ठीक है, मैंने एक रैंडम डेट ली 7 जुलाई 1991. ये जो ग्रिड होती है 319 675 284. This is the Vedic grid. 319 और इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये यूं और यूं और यूं और यूं नहीं. 319 675 284 ये फिक्स है. It is not going to change. All right. Next. अब आपको क्या करना है? इस 7 को उठाना है, 7 की जगह पे लिखना है. इस 7 को उठाना है, इस 7 की जगह पे लिखना है. ये हम नहीं लेंगे बिकॉज सेंचुरी नंबर हम एक्सेप्ट नहीं करते. 9 and 1. 9 कहां पर आएगा? यहां पर. 1 कहां पर आएगा? यहां पर. ये बन गई इस बंदे की ग्रिड. दैट्स इट. ये होगा पर्सनालिटी नंबर 7. मैंने जरूर बोलना है ओके ये है नंबर 7. इसकी वो भी है की कहते हैं डेस्टिनी नंबर है तो है. मेरे को डेस्टिनी से इतना लेना देना नहीं है, पर्सनालिटी से इतना लेना देना है ही नहीं जितना कि मुझको ग्रिड से है. इसमें इसका P K D A B C ग्रिड में नहीं आएगा. ये इसकी बेसिक ग्रिड, बेसिक वैदिक ग्रिड बन गई. रेडी फॉर Ma'am, यस. if the person is 9090, तो इस केस में अगर इसको आपने 0 बना दिया तो ये बन गया इसकी ग्रिड. दैट्स इट. okay, so Zero we do आएगा. not have to take 90. Okay. एब्सोल्युटली नॉट. नहीं 90 तो लेंगे ना राज्य, ये लेना नहीं. है. 90 we have to take, but 0 is there's Yeah. no. यस यस. आपको ग्रिड खाली खाली लग रहा है. अब एक नंबर यहाँ पर आएगा. एग्जाम्पल महादशा, अंतरदशा, गोचर लगा लो, पर्सनल ईयर. भर गई ग्रिड. हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है वैसे तो. इसका आ गया महादशा, अंतरदशा, गोचर, पर्सनल ईयर. Every time
इसका ईयर बदली होगा, कब से कब होगा? ऑलवेज बर्थडे टू बर्थडे. Vedic never goes by 31st December, Happy New Year, doesn't work. It's always birthday to birthday. Clear? 319-675-284 fix है. I'll take one more date and I'll try to fit it in. So ये fitting में कोई दिक्कत ही नहीं होगी. बड़ा ही simple है. Again we will do it. Wait, no questions अभी. Jyoti, I'll tell you when to raise hands. Okay? So एक डेट लेते हैं, डबल डिजिट लेते हैं, बहुत सारे डिजिट्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 12 नहीं 12 नहीं लेते. Make it a little interesting for you. We'll take an 18, 12, 19, 76. बहुत सारे नंबर्स आ गए. अभी हम लेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पे लेंगे 8. अगेन मंथ लेना है 1, 2, 19 नहीं लेंगे, हम लेंगे 7 और हम लेंगे 6. अभी ग्रिड भरा भरा लग रहा है, राइट एवरीवन? अब जब इसमें आएंगे आपके नंबर्स, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ग्रिड और भर जाएगी. So there will be a relationship between this, इसका relationship, इसका relationship, इसका relationship, इसका relationship, इसका relationship. That is how we study Vedic grid. There are combinations and यही combinations को हम कहते हैं yogas. जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, इसका बुध आदित्य योग है. कैसे बनता है बुध आदित्य योग? सन प्लस मर्क्यूरी. तो यहाँ पर सन प्लस मर्क्यूरी हो गया. कैसे? 1 and 5 खत्म. 1 and 5 हो गया. सन एंड मर्क्यूरी. 5 तो नहीं है इसमें. ना ना ना, एग्जाम्पल इसमें नहीं है. एग्जाम्पल अगर सॉरी अगर जैसे 1 है और अगर उसकी पर्सनल ईयर 5 आ जाती है मान लीजिए, तो फिर उसको उस साल में बुध बाबू आदित्य योग आपने बन जो गया. पर्सनल ईयर काउंट करा और ये जो वैदिक में काउंट होता है अलग होता है. अगर वैदिक वाला आ जाता है 5 हाँ. और 1 ऑलरेडी है तो उस साल में उसको बुध आदित्य योग बन गया मतलब. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा. ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा ठीक. ऐसे नहीं. अब वो 5 ऑलरेडी है या नहीं है, 1 ऑलरेडी कितनी बार है, 5 का दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, सब मैटर करेगा. यस एनालिसा. Ma'am, I have a doubt here. If in one place, if 3-1 it comes, it's like, then what does it mean? What will it mean? We will study in the significance of the numbers. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yes, yes. आज का मेरे को आपको ये काम है, मुझे वैदिक ग्रिड समझाना है. क्या होता है, एजेंडा क्या है, वैदिक ग्रिड क्या होता है, वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं, एंड नंबर्स 1 to 9 को मैंने आपको समझाना है इन द वैदिक वे. ओके, इन द वैदिक न्यूमरोलॉजी वे. 1 नंबर इज द सूर्य, यानी कि सन को रिप्रेजेंट करता है. 1 नंबर आपकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज सन ऑल्सो रिप्रेजेंट द फादर एंड द गवर्नमेंट. ओके, सो फादर, गवर्नमेंट, आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है. उसके साथ साथ ईगो एंड आपके घमंड को, आप में गुस्सा कितना है उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है. नंबर 2 रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट मून. ये आपकी आपकी मम्मी और आपकी लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है. आपका मन, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, राइट? हाउ सेंसिटिव आर यू,
I would also say how feminine are you is a number 2. आपकी confusions और आपके दुविधाओं को भी number 2 represent करता है. Number 3 is represented by Guru यानी कि Jupiter in astrology. आपकी good luck, आपकी blessings, आपकी morality, ethics, आपकी expansive qualities को represent करता है in the positive way. एंड नेगेटिव में आप कितने इल मैनर्ड हो, आप कितने रूल्स ब्रेक करते हो और आप कितना ज्यादा कोई चीज फेक कर सकते हो इज द नंबर 3. नंबर 4 is about the ideas and something to do with a dirty thought. It's not, I'm saying in the wrong way. किसी को मैनिपुलेट करके नीचे गिराना, किसी को परेशान करना, इस तरह के गंदे ख्याल भी नंबर 4 से ही रिप्रेजेंट होते हैं. और चालाकी से आपका कुछ काम अच्छा हो जाना, आपके पास बहुत सारे आइडियाज, आपके पास किसी चीज का फितूर होना, नंबर 4 यानी कि राहु को रिप्रेजेंट करता है. नंबर 5 जुगाड़ को रिप्रेजेंट करता है. प्लैनेट इज मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह. ओके, आपके दिमाग की आइडियाज राहु है एंड जो मर्क्यूरी है ये आपके दिमाग की एप्लीकेशन है. आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप कितने सियाने हो, आपको बिजनेस सेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, या आप में बचपना कितना ज्यादा है, आप कब क्या बोलते हो, आपकी कम्युनिकेशन की पावर कैसी है. कुछ लोग होते हैं मुंह खोलते सार लोग उनको चप्पल मार के चुप करा देते हैं, वो जुतियां खाते जब मुंह खोलते, और कुछ लोग है जब मुंह खोलते उनके मुंह से सिर्फ फूल बरसते और लोग तरसते उनको सुनने को. दैट इज द नंबर 5. ऑल्सो number 5 is traveling and abundance. Number 6 Venus का नंबर है. Okay, it represents all the luxuries in your life. आपके काम बैठे बैठाए कितने होते हैं, luxuries आपकी लाइफ कितनी ज्यादा है, आपके पास लाइफ में कंफर्ट कितना ज्यादा है, is the number 6. नंबर 6 ऑल्सो आपको अफेयर प्रोन बनाता है कि भाई आपको अब किसी चीजों की ज्यादा रिलेशनशिप की ज्यादा नीड नहीं है, बट रादर यू वांट टू क्रॉस योर लाइंस. दैट इज ऑल्सो अ नंबर 6. नंबर 7 आपकी केतु को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आध्यात्मिकता को, आपके स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है. एंड यहाँ पर वैदिक ग्रिड में बीइंग इन द सेंटर ऑफ द ग्रिड, इफ यू हैव नोटिस्ड, इट रिप्रेजेंट्स स्टेबिलिटी. ये आपको स्टेबलाइज करने वाला नंबर है, आपकी गुड लक को रिप्रेजेंट करता है. इवन मोर देन अ नंबर 3 इज नंबर 7 व्हिच इज केतु. आपके पागलपन को, आपकी एंजाइटी लेवल्स को भी नंबर 7 ही रिप्रेजेंट करता है. एंड नंबर 8 आपकी पावर स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है. आप कितना पावरफुल बनना चाहते हो और उस केस में आप हार्ड वर्क कितनी करना चाहते हो, आपकी लाइफ में स्ट्रगल कितनी है, आपने कितनी चप्पल घसी है फॉर यू टू गेट व्हाट यू वांट, इज द नंबर 8. एंड नेगेटिव में ये आपसे चप्पल तोड़ मेहनत करवाई जाएगा, आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. एंड लास्ट बीइंग नंबर 9 आपका प्लैनेट मंगल रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर आपकी करेज कितनी, आपकी दृढ़ता कितनी है कि अगर मैंने कहा मैं ये काम करूंगी. कंसिस्टेंसी नंबर 1 से आती है, फीलिंग दैट वर्क नंबर 2 से आता है, लक मेरा साथ देगा नंबर 3 से आएगा, 4 आइडियाज लेकर आएगा, 5 उसका इंटेलिजेंस और जुगाड़ करेगा, 6 मुझे वो मोटिवेशन देगा कि मुझे ये लग्जरी चाहिए और मुझे जाके वो काम करना है, 7 नंबर उसकी रिसर्च, उसकी डेप्थ में मुझे हेल्प करेगा, 8 नंबर मुझे स्ट्रगल करवाएगा और 9 नंबर मुझे दृढ़ता यानी कि डिसिप्लिन देगा टू स्टैंड माय वर्ड. पेशेंस also comes from a number 8, but to stick on to it with discipline is a number 9. सीधा सीधा आप समझ जाओ, जितने हमारे जिम वाले लोग हैं, जो लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, जिन्होंने जिम बॉडीज बनाई हुई हैं, they are all ruled by Mars. जिम itself is a मंगल. जिम एक मंगल ग्रह से कनेक्टेड होता है, सिग्निफाइड होता है. और जिम में जो लोग डिसिप्लिन से जाएंगे, बाहर निकले छोले भटूरे खा ले, तुम्हारा डिसिप्लिन कुछ नहीं, तुम्हारी बॉडी नहीं बननी. When you make that body, you have to follow discipline, which is मंगल. तुम्हें देख के इंसान डरे, मंगल यानी कि नंबर 9.
Another negative number 9, बिना बात का गुस्सा, गलत जगह पे गलत बिहेव करना, गलत जगह पे गलत तरह का करेज और हिम्मत दिखाना, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। नंबर्स बहुत सिंपल से होते हैं, प्रॉब्लम आती है जब ये एब्सेंट होंगे या जब इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले जो बच्चा पैदा हुआ, मैंने आपको डेट बताई 3 times 2 है, वो 2 का ओवरलोड लेके पैदा हुआ। और यहाँ अगर उसके महादशा, अंतरदशा और गोचर एंड इसमें पर्सनल ईयर में भी नंबर 2 आ जाता है, 7 times 2 होने की वजह से उसका बाकी नंबर्स तो मिसिंग है, लेकिन वो नंबर उसका एक्सेस होने की वजह से उसको वो दिक्कत देगा। अभी क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? मैम सारे मल्टीपल नंबर्स में प्रॉब्लम है, लाइक या कोई ऐसा है कि ये No. फिर भी ठीक रहेगा? all multiple numbers are a problem. कमिटी किसी की भी डल जाए तो 3-4 बाप हो जाए तो दिक्कत, 3-4 माँ हो जाए तो और परेशानी है। गुरु को तो किसको पूछो किसको ना पूछो, राहु बहुत दिमाग चलाओगे तो और दिक्कत है। बच्चे 5-6 साथ में घूमेंगे तुम्हारे को चक्कर आ जाएंगे। बीवी एक होती हुई 6 नंबर की अच्छी लगती, 10 बीवियां होंगी वो भी नहीं चलेगा। 7 ओवर थिंकिंग, ओवर रिसर्च करना, ओवर ही बाल की खाल निकालना आपको एंजाइटी दे देगा। 8 नंबर को ज्यादा ही होगा, आपको बहुत ज्यादा चप्पल खिंचाएगा, एक नहीं सारी की सारी चप्पलें आपकी घसेंगी। और 9 नंबर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, आई विल हैव टू गवर्नमेंट के योग होते, इट्स नॉट मल्टीपल 1 नंबर, इट्स नॉट लाइक दैट। Amitabh Bachchan has number 1 5 times in his grid. Does that make him a government employee or a government connected person? Not like that. I have 1 number 4 times, so I'm not connected to the government. It's not number 1 only. नंबर 9 अगर बहुत ज्यादा बार हो जाएगा, बंदा कुछ ज्यादा ही जिम में पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा ही गुस्से वाला हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही करेजियस हो जाएगा, एक्चुअली फायर में कूदना चालू कर देगा। सो नो नंबर इन इट्स एक्सेस इज गुड। राजश्री जी, मैं हूं ना, क्लास हमारी परसों से चालू हो रही है, हम वहां पे सिखाएंगे अंतरदशा कैलकुलेट करना भी और उसको प्लेसमेंट करना भी। क्यों अभी से कर रहे हो? रुक जाओ। ज्योति, आस्क योर क्वेश्चन। Karan, Karan Gupta, I don't know what's your name, but raise your hand and come to the top screen, please. Jyoti. मैम मुझे ये पूछा था, आपने बोला पर्सनल ईयर जो है वो बर्थडे टू बर्थडे चेंज होगा, राइट? बट अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर हम ईयरली चेंज करते हैं तो वो तो हमारा फर्स्ट ऑफ बाबू, ये तो वैदिक है, ईयरली टू ईयरली बर्थडे तो टू वो बर्थडे ईयरली में चलेगा। कैसे चेंज, मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। I'll be telling that in the class. Obviously, हाँ, वही calculations in the class. वो एक तरीके से कैलकुलेशन हो गई इन शॉर्ट। ओके, वही ये कंफ्यूजन आ रही थी। ठीक है कोमल। मैम मैं ना थोड़ा न्यूमरोलॉजी में टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी को लेके थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। मैंने पढ़ा है ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था। वो चैलेंजेस करके जो होता है वो वैदिक में होता है क्या? कि नहीं, challenges and pinnacles are in Chaldean. शेल्डियन में होता है। और 369 करके अगर ग्रिड होती है वो 369. यस, 369 इज अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो बहुत हाँ। फेमस है। अरे नहीं, मैं ग्रिड की बात कर रही हूँ। अभी कोमल तू कहाँ से भी ग्रिड लेकर आएगी, मैं देखो उसका जवाब यहाँ थोड़ा ना दूंगी क्लास में कि अपने कहाँ से नहीं, लेकर ऐसी कोई आया। ग्रिड होती है क्या? मैं वो No, there is no 369 grid. Nothing that I am aware of. 258147 लोशो ग्रिड, आई थिंक ये लोशो ग्रिड की बात लोशो ग्रिड की बात करें। लोशो ग्रिड है। लोशो 369 किधर है? नहीं होती है। हाँ, लोशो is 258. 492357816. हाँ बराबर। ये ऐसी कोई ग्रिड होती है क्या? नहीं बाबू होती है। नहीं होती, but there are other methods also to see that. उसमें फिलहाल I am not getting over there, so no, not that. Okay. Yes. Karan, ask your question. Okay, I'm Chetna. Karan is my son's name actually. अच्छा, So okay. I just wanted to know, जैसे ये हमारे लोशो ग्रिड में होते हैं, जो हमारे जैसे 492, that is जो हमारा जो लाइन हो गई, that is like Yes. you have a mind and then loneliness Yes, नहीं yes. होता है, तो ये सब वैदिक में होता है। Of course. 319 का अपना मीनिंग होगा, 675 का अपना मीनिंग होगा। लाइंस का मतलब आएगा ही आएगा, नंबर का आएगा, लाइन का आएगा, कॉम्बिनेशंस का आएगा। ठीक है।
आप लगा लो, हर लाइन पे 4-4 कॉम्बिनेशंस होंगी। अच्छा, एक और चीज, अभी जैसे हमारा जो चलता है पाइथागोरस में जो चलता है वो a is 1, b is 2, 3 is 4, वैदिक ऐसे में ही वो है? सब नहीं है, वैदिक में वो नेम नहीं है, न्यूमरोलॉजी है ही नहीं। तो नेम कैलकुलेट ही नहीं करते नो हम। नो, ओके ओके। ट्रस्ट मी, नेम कैलकुलेशन करना है, गो फॉर चाइल्डियन, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी अदर सिस्टम फॉर नेम करेक्शन। फिर जैसे अभी हम लोग तो जैसे रेमेडीज ही नेम करेक्शन देते हैं, तो इसमें फिर हाँ, अलग तो तरीके से रेमेडीज देते हैं। ये तो रेमेडीज अलग हो जाएंगे, ये वैदिक रेमेडीज है। हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके। हिमांशी? दी क्या कहते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा परफेक्शन वैदिक ही होती है ना, पीपल से इवेंट निकालने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, यस जैसे एक्यूरेशंस में यस इवेंट। यस यस, दैट इज वैदिक। प्रेरणा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hello. Yeah, hi. Yeah, hi. Actually, I just wanted to check, जो आप अभी Vedic numerology, I'm not aware of it. I'm just totally new to this. I've done no, basic numerology basically, which is a Chaldean one. तो इसमें आप astro का कुछ, जैसे for example, is it connected to the astrology part, and will we be doing something in astro calculations or anything? Not at all. Calculation is not of astro, खाली इसका नाम दिया है कि एक कैलकुलेशन का नाम महादशा है, एक अंतरदशा है, एक गोचर है, which is properly numerology based. उसमें कैलकुलेशन भी एस्ट्रोलॉजी वाली नहीं है। बट वैदिक क्यों कहा गया है? इट इज वेरी मच इन टक्कर, इन कंपैरिजन टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। Right. Okay. So it is, you mean to say, accurate? Absolutely it is. Okay. And suppose वो हम लोग को ऐसे Chaldean वाला numerology हम लोग already practice कर रहे हैं. For example, I'm not like a pro as in I've just learned and I'm just practicing. Will there be any sort of confusion if I learn Vedic and try to? Is there a combination? No. Is there the grid that you have done in Chaldean? Yeah, the Loshu grid basically I'm talking about. तो आपने Loshu and Chaldean का combination करा है? नहीं, actually I think I might be wrong in telling that a Chaldean मतलब जो name numerology का वो जो हम लोग use करते हैं Chaldean वाला, and I've done the Loshu grid in the numerology in the basic. See, that is completely different. आप मैं अगर आज करती हूँ, to be very honest, I calculate when I do numerology readings, I calculate Loshu and Vedic together. Okay. पर मैं Vedic नहीं करती, ऐसा possible नहीं है। आपके इवेंट्स जो निकलने हैं, जो आपकी प्रेडिक्शंस आनी है, वो सिर्फ एक्यूरेटली आपके वैदिक से ही आएंगे। बिकॉज आपके ये 4 नंबर्स आएंगे जाएंगे, इनकी कॉम्बिनेशन से आपका योग बनेगा और बेसिक ग्रिड से आपको एक्यूरेटली पता चलेगा। प्रेरणा, फॉर एग्जाम्पल, जिनको लोशु आती है प्लीज मेक द ग्रिड, जिनको नहीं आती है प्लीज वॉच। प्रेरणा, give me any 2 birth dates, sorry 1 birth date जो हम एक लोशो में बनाएंगे और एक हम वैदिक में बनाएंगे, and I will tell you the difference. Okay, I'll give you my birth date if it's okay. एक काम करते हैं, मैं आपको एक ग्रिड मैं खुद बना के बताती हूँ। हाँ जी, okay, no problem. जिनको लोशो नहीं आती आपको घबरना नहीं है, मैं खाली जिनको आती है उनकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कह रही हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 20 मार्च 1983। इसको मैं एक छोटू सा यहाँ, अच्छा इसको हम लोग, मैं एक सेकेंड, I'll have to also make the Loshu and show you all ना, give me a second, wait. लोशु ऐसा होता है, मैं एक छोटा सा, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, मेरे को सब पूरा बनाना पड़ेगा। 20 मार्च 1983 आपका ये लोशु बनेगा। दिस इज द लोशु ग्रिड, 492357816। एग्जाम्पल दे रही हूँ, यही मैं ग्रिड बना रही हूँ वैदिक। वैदिक में क्या था? 319675284। यही ग्रिड दोनों में कैसा अलग बनेगा को मैं बताती हूँ, को बेसिक डिफरेंस समझाती हूँ। 23198 3
मैं अभी इसे पीकेडी ले ही नहीं रही हूँ दोनों में। और यहाँ पर क्या आएगा 2 3 8 3। क्लियर एवरीवन? अब डिफरेंस है इन दो नंबर्स का, बाकी छोड़ दो, इन दो नंबर्स का। मैम 3 ऊपर आएगा ना? I think 3 will come on top, I think. आई एम सो here. सॉरी, तो दोनों में Yeah. कंफ्यूजन, सॉरी माय बैड। ओके, 1 and 9 का डिफरेंस है। नाउ माय क्वेश्चन इज, 1 हमको दिखाता है सन, इसका है फादर से रिलेशंस हो गए, गवर्नमेंट से कनेक्शन हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गई। इसका 9 यानी कि मार्स में क्या हुआ, करेजियस हो गया, बोल्ड हो गया, वाइज सोल है, इसको लोनलीनेस रहेगी। इधर तो 1 और 9 है ही नहीं। जे अगर मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 डाल दिया इसका, तो ये लाइन ही पूरी हो गई। एवरीबडी बोर्न इन 19th century, एंड अगर उसकी बर्थ डेट में 3 आ गया, 30th मार्च, 3rd मार्च 1983, 1993, या 13th डेट हो गया, या उसका जो भी, मतलब हर बच्चा इसको इंटेलिजेंट होगा। ये सुपर डुपर इंटेलिजेंस का नंबर है भाई, हर एक में नहीं होता। बिकॉज हमने 1 9 को एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करा। It clearly shows that you have these two missing। यहाँ पर भी सुपर इंटेलिजेंस किधर दिखा रहा है? This is why वैदिक में आप जो हो एक्यूरेसी ला सकते हो। ये एक बेसिक फंडा है, आपको एक पॉइंटर आपको समझा दे। अभी आप क्या करोगे, इसी ग्रिड में पीकेटी डालोगे, उसके मिसिंग नंबर्स के एरो को बचाओगे, चलो ये भर गया, वो भर गया, वो भर गया। ये ना जुगाड़ है। वैदिक क्या कहता है, यू आर बोर्न विद दीज नंबर्स, यू विल बी प्लेड विद the 4 numbers that come in your grid again and again, and that is why आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे। कोई सडनली जेल पहुंच जाता है, कोई सडनली दारू की लत पड़ जाती है, कोई को सडनली भाग के शादी कर लेता है, किसी को बच्चा इतने साल तक नहीं हुआ अब हो जाता है, so on and so forth। Just by one personal year and just by one personal month, can you really give the answer of this by Loshu? You can't। I'm not saying Loshu has any kind of shortcomings. Loshu is a beautiful course by in itself, but उसका connection Chaldean के साथ नहीं है। Loshu का connection Feng Shui के साथ। Because China में जब बाढ़ आई थी, एक magically tortoise या turtle appear हुआ था, जिसके back पे वो engraved मैजिकल लोशो स्क्वायर निकला। उसमें मैजिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये ग्रिड है 492357816 को आप जौन से मर्जी तरीके से तीनों नंबर्स उठाओ, 492 ले लो, 457 ले लो, कैसे भी ले लो, 456 सॉरी, they will come to the total of number 15, and 15 relates a lot to the Chinese systems, and that is the reason it is considered as God sent, and that is where Chinese numerology started। अब उनके केस में dragon is the best thing that has ever happened to mankind। Everyone knows that। अब किसी चीनी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप कोई भी चाइनीज कंट्री में चले जाओ, आप कोई भी ऐसा रेड जो रेस्टोरेंट दिखते हैं वहां चले जाओ, आपको ड्रैगन दिखेगा दिखेगा दिखेगा। एंड ड्रैगन हेड कौन होता है? राहु। आप अगर नोटिस करोगे, लोशु का स्टार्ट 4 नंबर से होता है? और हमारे ग्रिड में हमारे वैदिक के ग्रिड में 4 इज द लास्ट, बिकॉज वैदिक में उसको वैसा रखा था बाय द थियोरी ऑफ द समुद्र मंथन। इट इज अ राक्षस जिसने बस चुपके से अमृत पी लिया। Therefore, it cannot be given the top position। पर लोशु कहता है जब सारा दिमाग से ही काम होना है तो दिमाग को टॉप पे रखो। अभी 319 जिसका ओरिजिनली ऑर्गेनिकली बन रहा है, विदाउट एडिंग पीकेडी, विदाउट एडिंग योर सेंचुरी नंबर एंड व्हाटएवर, उसका दिमाग खरा सोना है।
या वो चलता फिरता शकुनी मामा है। और दिमाग वाला बंदा सही काम करे कौन कहता है? वो एक था ना डायलॉग सोनू के टीटू की स्वीटी में कार्तिक आर्यन बोलते ये चाणक्य की माँ है। वो आपको 492 में नहीं मिलेगा प्रेरणा। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन हैव अ 492 बिकॉज आप जुगाड़ करके ले आते हो। यहाँ ओरिजिनली 319 ला के दिखा दो, क्योंकि 19 आप ले ही नहीं रहे हो, आप सेंचुरी ले ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो? Therefore, it is not taken into consideration your century number and neither the PKD. No jugaad. So Yes. it's possible to just do both the things easily together and come Absolutely. up with an absolute accurate answer Yes, is what you're yes, saying, right? yes, yes. Okay. There'll be no confusion. क्यों होगी? Ma'am, System if ही अलग the है। birth date is 18, as you just gave the example also, हाँ, so हाँ। won't 9 be considered in that case? No. वही तो मैं कह रही हूँ, PKD डालना ही नहीं है। मुझे पता है तुम 9 नंबर पर्सनालिटी हो, तुम दबंग हो, तुम करेजियस हो, उसको ग्रिड में क्यों डालना है? मुझे पता है ना। मुझे ग्रिड में लोग भर्ती नहीं करने हैं। I don't want feed in my grid. You understood? That's the whole point. Kashish. हाँ, मेरा ओरिजिनली 319 बन रहा है ग्रिड में, तो अभी उसके पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? लाइक यू सेड कि आइदर द दिमाग इज खरा पूरा ग्रिड चाहिए मैडम। ओके, क्योंकि बाकी नंबर्स भी तो बताएंगे ना कि क्या चल रहा है। बाकी सिर्फ एक 5 है और मिसिंग है सब। देखेंगे ना। ठीक है। रितिका, ask your question. Yes, ma'am. I wanted to ask if relationship compatibility checking is included in this course. Yes, compatibility is included. All right, ma'am. Thank you so much. You're welcome. Komal? मैम सॉरी, वो हैंड नीचे करना भूल। अच्छा, कोई बात नहीं। Karan, you still have a question? Else, I will present what this class is about, and we will do a quick one reading sample. Yes, Karan. हाँ, पहले अनम्यूट तो करो। सॉरी, अभी अगर किसी का ओरिजिनली 178 बन रहा है तो डज दिस हैव एनी सिग्निफिकेंस इन वैदिक? We will be वैसे तो 319 का भी है, 178 का भी है, 284 बिकॉज यू का सेड भी। कि वो ग्रिड ऐसे ही पढ़ी जाती है, बस आपने बुलाया था ना कि वो बस 319 675 ऐसे ही पढ़ी मैंने जाती कहा है। था आपके पास इतने सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। आई वाज सेइंग दिस दैट आप जितने लाइंस लोगे हर एक में 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 178 18 78 17, these are the 4 combinations of each line. 16168. Okay. So Yeah? you will be sharing the course details after this class, Right no? away, right away. Sure. Thank you. Yes, Indrani, your question last, and then we share the course what this is about. Yes, Indrani. Good evening, ma'am. Good evening. Just wanted to check, अगर जो twins born होते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ तो सेम रहता है, बट उनके भाग्य एकदम डेस्टिनी अलग होती है। हाँ जी। तो उनकी प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे? Name, that is the name. तो वो इसमें कवर होगा क्या? No, that is not going to be covered because that is namology and chronology as a course. Okay, because एक ही दिन में एक ही डेट ऑफ बर्थ में तो कितने करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, बट सबका भाग्य अलग है। So name is the differentiator factor. Absolutely. अच्छा, ठीक है। तो मैम वो वाला कोर्स आप लाओगे जहाँ पे chronology और chronology is just got over. You can buy the course if you want, and आपको जहाँ पे अटक होगी, I can help you with it. Okay, it is. Can I buy that? When? Today? Tomorrow? Whenever? नहीं, आपके किसी ऐप में है? कहाँ पे है? नहीं, मेरे पास ऐप वगैरह कोई नहीं है। I don't do the app thing. आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको उसका once you pay, I will give you the recordings and the material. You go through, and then wherever your question is, I will help you. Okay, ma'am. Thank you so much. All right. रजनीत, बोलो। मैम क्वेश्चन कोई नहीं है, बस ये पूछना है, आज तुसी पंजाबी क्यों बोल रहे हो इतनी ज्यादा? पंजाबी हूँ तो बोल भी लूंगी। अच्छा, तुसी पंजाबी हो? मम्मी है। ओके। देखो ये लोग सारे सिंधी के लग रहे हैं। थोड़ा लगदा सी पर ठीक है।
सही है। Yes. So the course, acha, I am sharing with you all the main course, and there is a basic also. मैं वो बेसिक का आपको फ्लायर भेज दूंगी. पहले मैं आपसे मेन कोर्स शेयर करूँ जो पूरा है. बेसिक का भी फ्लायर, पहले मैं बेसिक एक्चुअली फ्लायर शेयर करती हूँ. 1 second, just give me a second, and then we will do the, क्योंकि जिसको आपको बेसिक से स्टार्ट करना है आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो. If you all want to do the, हाँ जी, okay, so the basic course is for 1 day, which is tomorrow, and it is introduction to the numerology, making the Vedic grid. जैसे हमने अभी करा उसको हम डिटेल में करेंगे. इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द नंबर्स. जब नंबर्स डबल ट्रिपल एक बार होगा तो क्या होगा, 2 बार में कैसा बिहेव करेगा, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, एंड मोर. मेल एंड फीमेल नंबर्स कैसे होते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. डेट इज 7 February, which is tomorrow. Timing will be 7 to 10 PM only for a day, and fees is 750. उसका GST लगा करके 885 होगा. I'm sharing with you all the payment options in a bit. Now coming to what is the main course all about. Understanding the mythology between the numbers 1 to 9. कि ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राहु को समुद्र मंथन में वो हुआ था. कोई प्लैनेट का ऐसा बिहेवियर है तो क्यों है. ऑब्वियसली अगर प्लैनेट का बिहेवियर है तो वो उस नंबर का बिहेवियर है. अगर मैं गुस्से वाली हूँ तो मेरे साथ एक ठंडा इंसान ही चलेगा. अगर वो आप गुस्से वाला हो, हम सारा दिन लड़ाई करेंगे, तलवार लेके खड़े हो जाएंगे. Right? So why am I an angry person? Why can't I tolerate a particular person as in a particular number? What is the base of the compatibility between the numbers? Hard and soft planets कौन से होते हैं और उनका impact हमारी लाइफ पे कैसे होता है, हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे बिहेवियर पे कैसे होता है. महादशा कैलकुलेशन, अंतरदशा कैलकुलेशन, ट्रांजिट या गोचर जिसे कहते हैं उसकी कैलकुलेशन, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन विच इज नॉट द सेम टू द लोशु, वो अलग होती है. मिसिंग नंबर एंड उनकी रेमेडीज, विच आर द नंबर्स विच आर मिसिंग. डिस्टर्बिंग प्लैनेट्स एंड रेमेडीज, यानी कि जब प्लैनेट्स डिस्टर्बिंग लेवल पे आते हैं उनकी रेमेडीज कैसे होंगी. आपके 50+ रादर बहुत ज्यादा ही कॉम्बिनेशंस हैं फॉर मैरिज, डिवोर्स, जॉब, प्रमोशन, कोई गिर गया, कोई अगर एडिक्शंस हो गई, कोई जेल चला गया, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी की हेल्थ इशू आ गए, so on and so forth. There are all these combinations in terms of yogas. Then partnership combinations, कि किस तरह के इंसान के साथ आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, keeping in mind what is the business in question. कि क्या वो इंसान के साथ होने से आपकी ग्रोथ होगी या आप जेल पहुंचोगे या आपके साथ कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी या वो सिस्टम फॉल आउट हो जाएगा या वो आपको कंट्रोल करेगा, पैसे लेके भाग जाएगा, so on and so forth. रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, मेनी टाइम्स हमारे पास कुंडली आती है, सॉरी डेट्स आती है कि मैं इससे किससे शादी करूं, या मैंने इससे शादी करनी है, मेरे साथ शादी कैसा चलेगा. सो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी. करियर अपॉर्चुनिटीज, इफ यू आर नंबर 1 to 9 और 2 और 3, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरह की होती हैं. देन लॉसेस के नंबर, सडन एक्सपेंसेस के नंबर्स, डिसरिस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन, इलॉजिकल माइंड का कॉम्बिनेशन, गुड लक, मनी, लव, ट्रैवल, आर्ट, बिजनेस के कॉम्बिनेशंस, प्रॉपर्टी के नंबर्स, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, किस तरह के करियर करने चाहिए और उनके ग्रिड्स उनके नंबर्स के साथ, माने कॉम्बिनेशंस. देन पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, ये अलग है, वो जो हमने किया वो ग्रिड में डालने वाला था आपके 4 टॉप नंबर्स. ये जैसे हम लोशो के लिए अलग से करते हैं वैसा है अलग से, नॉट द सेम कैलकुलेशन, डिफरेंट. पर्सनल ईयर एंड रेमेडीज, पर्सनल मंथ एंड रेमेडीज, पर्सनल डे एंड रेमेडीज. मुहूर्त कैसे निकालेंगे कि आपके लिए बेबी पैदा करना कौन से डे के लिए बेटर है, गाड़ी लेना कौन सा डे बेटर है, घर का प्रवेश करना कौन से डे के लिए बेटर है, किसी का फ्यूचर डिजाइन करके उसके बेबी की डिलीवरी करवाना कि which date is suitable, not just by the karmic numbers or just by the master numbers. There are other calculations for it. एक इंसान 45 या 90 साल की उम्र जो जीता है उसकी लाइफ स्पैन कैसी होती है कि उसने कितने साल अच्छे जिए, कितने साल खराब जिए. सो मैपिंग द लाइफ स्पैन की तेरे साथ ये साल में ये हुआ था, ये तेरा खराब टाइम गया था, ये तेरा अच्छा टाइम गया था. अगेन prediction, and this is very connected to the designing the future baby. Then practicing grids of famous personalities कि अगर वो यहाँ है तो क्यों है, उनका नेचर ऐसा है तो क्यों है.
सर्टिफाइड कोर्स है, मैनुअल आपको दिया जाएगा। फीस इज 12,000 प्लस 18% GST which comes to 14,160. Those of you all doing the basic, आप वो जब आप एडवांस करोगे आप वो पार्ट माइनस करके आप एडवांस कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट इज 8th February to 16th February. Timing 7 to 10 PM. Days are Monday, Wednesday, Thursday. It's a total of approximately 15 hours. और उसमें आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो जाए। With practice, with your queries, with all of it. मैं आपको ये वाला PDF and आपके साथ सब कुछ शेयर कर देती हूँ आपके ग्रुप्स में। Those of you who pay, remember we are starting tomorrow, so you all will. Okay. तब तक मेरे को 1 मिनट दो। नमिता सुरवे ask your question. तब तक मैं आपको शेयर करती हूँ। Namita, ask your question, please. Indrani, ask your question. Prerna, आप पूछ लो. So I needed to check in the advanced course, is the matter of the basic course is also included, is what you're saying? Basic अलग है, advanced अलग है. Basic में आपके numbers का जो ये है ना repetition of numbers वो cover हो रहा है, and then advanced हम वहाँ जहाँ छोड़ेंगे basic से वहाँ start करेंगे. So if I want to do the whole, do you think I should do the basic and this obviously, and both that yes, go yes. together, right? Yes, absolutely. Okay. तो आपने बोला कुछ minus होगा amount? अरे आप जब basic कर रहे हो ना, वो आपका amount उसमें से मतलब आपको अगर दोनों करना है आप 12,000 plus GST pay करेंगे. Like okay. that. So those All of right. you who are doing the full course, you all will pay 12,000 plus GST. आप अगर खाली बेसिक कर रहे हो तो ये, एंड बाद में अगर आप फिर एडवांस में आते हो तो यू कैन माइनस द बेसिक अमाउंट एंड देन गिव. तो आपका टोटल अमाउंट 12,000 ही रहता है प्लस GST ऑफ कोर्स. Okay. Thanks. Yeah? Thank you. Okay. Let's do a quick calculation. Dipti Sharma. Are you okay for me to share your birth date? Okay. Tell me your birth date, please, darling. 16/03/1983. हालांकि मैं कैलकुलेशन यहाँ नहीं करूंगी, बट स्टिल तब तक आप लोग इसकी ग्रिड बना दो. 16 हेलो. Yes, ma'am. 16/03/1983. 83. ये इनकी ग्रिड बनेगी. जी. Everyone has made it. Last 5 years में आपने travel बहुत करा है या you have grown in life a lot, brought in a lot of variety in life? Ma'am, I am a cabin crew, so I always travel. So has it been happening more in the last 5 years? Yeah, otherwise. Yes, of course. Yes. Did you bag this opportunity? Where are you? Yeah. Did you bag this opportunity in the last 5 years of being a cabin crew? Yeah, Yes. you've always. No, I am in this industry from the past 16 years, but right now I have. हाँ, 5 साल में मैम मैंने चेंज, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, so मैं 5 साल में मैंने पिछले 5 साल में I have changed my job. So I said changes, abundance, and you have made money. You have seen the world. You have traveled. Probably आपने बहुत नवे-नवे लोगों से मिला है.
you have experienced changes, and that has brought in abundance. You have learned a lot in this last 5 years. Yes, absolutely correct. So ये जो calculation होती है, इसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी, मैंने एक पॉइंट लगाया बिकॉज अदर कैलकुलेशन विल अगेन टेक टाइम, जस्ट वन कैलकुलेशन आपको। अच्छा, आप बोलोगे हाँ 3-1 है, 3-3 है, ये ऐसा है, दैट्स वेरी बेसिक, दैट्स वेरी पासिव। ये जो बुल्स आई पे जाना होता है ना, जिसको मैं अभी बताया, बुल्स आई इज कैसे कैलकुलेट किया? सिस्टम है डार्लिंग, सिस्टम है। Because it's absolutely correct. Yeah. So you're married or how is it? Yes, ma'am, I'm married. I have a son, 6 years old. But right now I am not in a good shape personally. Very, 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 very bad shape. So that's why. In your marriage? Correct. Any scope of it improving? It's the process is going on. So, I mean, it's not been, how can I say, it's not on the papers right now, but it's the process is. आएगा भी नहीं. Papers पे नहीं आएगा. Don't worry, it'll all get better. A few months more and you wait and see, it'll all get better. जी. If you want it to be. ये भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है. If you want it to be. Okay? So मैम, अगर मैं एक चीज बस और पूछना चाहूंगी मैम, अगर मैं ये प्रोसेस में जाऊं, it will be better, or if I withdraw this process, it will be better. That's it. Do you really want me to say all this on the recording? See, you yes or no, don't... that's it. अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज में वायलेंस है, आपकी मैरिज में इश्यूज ऐसे हैं that you don't feel respected enough, then yes, please walk out. लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि this is your own ego and your own follies also and violence नहीं है, please stay. Your marriage can be saved. Okay? Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you You're for clearing welcome. it out. So that is when I say Vedic numerology. Namita, I already asked you, अपने hand raise करा, लेकिन मुझे कुछ पूछा ही नहीं फिर आपने. नमिता फिर hand down कर दिया यार, तुम इसे Tom and Jerry खेल रही है. No, ma'am, no Tom and Jerry. Actually, my daughter, she's very young, 2.5 years old. She came and asked me if I can have a chocolate. So I couldn't, respond to you. Sorry. Yes. कोई बात नहीं, Ma'am, नमिता बोलो. I've not learned numerology at all, but I Good. don't know, somehow I've been always attracted toward numbers. I did tarot reading and but this dashas and all, I have no clue. So you'll be teaching मैं हूँ in ना, that. मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? तो इनफैक्ट जिनको नहीं आती है, प्लीज कम हियर, इट इज बेटर. आपको नहीं आती है, मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है. Kind of empty glass, complete empty glass. I call it a कोरा कागज. I can paint whatever, however I want, which is the right thing to do. So this fees which you have quoted of 14,000 rupees and some after adding some GST. So this we have to pay in one go. No, you can pay in 2 installments. It's okay. Okay. मैंने कोर्स है ही 2 हफ्ते का, दो भी नहीं है, हार्डली कुछ टाइम है, तो आप कर लो, दो इंस्टॉलमेंट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, ma'am. Yes, thank you, ma'am. You're welcome. In Meetu, ask your question. Yeah, ma'am. We have just seen the numbers. So what is the impact of multiple 3 in the grade? Like classroom में. Okay. Prerna, ask your question.
Sorry, do you have another batch coming up soon? Because I was just thinking that 2-3 days I would be busy. So anything, any other batches? No, no. Okay. ये This भी is आई on थिंक the- साल के बाद हो रहा है ना करिश्मा? साल हो गया? हाँ, साल के बाद. So what about the recordings that we will have? Lifetime. Okay, and any doubts as if we are not present for the class? Okay, okay. Right, thank you. You're welcome. Yeah, thanks a lot. So those of you who wish to enroll for the basic, please go ahead. We're doing the basic class tomorrow. You'll get time to absorb for it, and then we start Thursday onwards with the first class of the advanced one. Okay, so you all are more than welcome. मैंने आपके पास सारी details दे दी हैं. I'll be opening the group for your discussions. आप जो question पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, and I'll be looking forward to seeing you on the other side. Take good care. Thank you. Lots of love and bye bye. हाँ, yes. So one more thing I wanted to ask you is this the ultimate advanced course, or is there anything more than No, this? Just one. This is the whole thing. Of it. Yes, all of it. Right, ठीक है? thank you. Ma'am, it Thank will you. take actually 3 hours per day. Can होने this को be अगर done in a छोटा smaller ग्रुप one? है, अगर छोटा ग्रुप बनेगा तो 2 घंटे में भी हो जाएगा, क्योंकि देखो छोटा ग्रुप है, क्वेश्चंस कम आएंगे, आपके ग्रिड्स कम आएंगे, तो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए. आई स्टिल गिवन इट अ 3 hour टाइम. अगर बड़ा ग्रुप हो जाएगा तो हमको 3 घंटे लगेंगे. Because I don't want to rush with it. You can't rush with Vedic numerology. ये ना फटाफट करा दिया हो गया, पल्ले ही नहीं पड़ेगा. और इसलिए मैंने इसको हफ्ते में से 3 क्लासेस रखी है. This is the reason. ठीक? Okay. See you all. Thank you and bye bye.